اگر آپ کی اجازت سے ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل آپ کو پورا اختیار حاصل ہے. نہیں, آپ کی اجازت وقتاً فوقتاً درکار ہے. ہمارے اگلے شاعر جو ہیں وہ ہم پھر اب پاکستان کی طرف چلتے ہیں, اپنا پیارا پیارا ملک. ڈاکٹر عمیر نظر نہیں آ رہا ہے مجھے اسکرین پر اس وقت. ڈاکٹر عمیر احمد خان, ہاں آ گئے. تو ڈاکٹر عمیر احمد خان جو ہے وہ یہاں موجود ہیں. میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں, اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایکس ملٹری آفیسر ہیں جنہوں نے ملٹری ہسٹری اور اسٹریٹجک سائنس میں ماسٹرز کے بعد پی ایچ ڈی کیا ہے کمپوزیشن لٹریچر ہسٹری میں, اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں تو آپ کمپیریٹیو لٹریچر ہسٹری میں غالباً. اور اس کے بعد انہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ کی ہے, اور اسکرپٹ رائٹنگ اور فن تمثیل پر پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے. آج کل یہ ماشاءاللہ اسکرپٹ ڈاکٹر کے طور پر, ڈاکٹر اس نیو فریز فار می, اسکرپٹ ڈاکٹر کے طور پر مختلف یورپین پروڈکشن سے منسلک ہیں. کئی زبانیں جانتے ہیں. بنیادی طور پر اس پہ ہماری بات ہوتی رہتی ہے. میں انہیں منی فکشن رائٹر کہتی ہوں, نظمیں بھی کہتے ہیں اور اسی میں پروز بھی کہتے ہیں, دونوں چیزیں کہتے ہیں. نثری نظمیں آج کل لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کی اپنی مرحومہ بہن جن کا ظاہر انتقال ہو گیا, ان کی فارسی نظمیں ہیں اور اس کا بہت بڑا کلیکشن ہے. اس کے یہ آج کل خوبصورت تراجم کرنے میں مصروف ہیں, اور ہم ارباب ذوق کی محفل میں ان تراجم کو سنتے رہتے ہیں. اور کیا خوبصورت ترجمے کیے ہیں انہوں نے, اور اپنے طور پر ظاہر ہے کہ یہ خود بھی لکھ رہے ہیں. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ہمیں اپنی خوبصورت نثری نظمیں سنائیں اور ان کا جادو جگائیں. ڈاکٹر عمیر احمد خان صاحب. بہت شکریہ نجمہ عثمان صاحبہ, میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اس طرح دعوت دی. میرا پیشہ بنیادی طور پہ کچھ اس طرح کا رہا ہے کہ مشاعروں سے ہم ذرا دور ہی رہے, اور بہت کم مشاعرے پڑھے, یا زیادہ سننے تک ہی زیادہ جو ہے سننے تک ہی, جی میں نے سن لیا, سننے تک ہی محدود رہے ہم. اور یہ آپ ہمیں کیونکہ کھینچ کے لے آئی ہیں, تو بنیادی طور پہ آج کل میں خود کام نہیں کرا. میں اپنی بہن کی جو کتاب ہے, میں نجمہ عثمان صاحبہ نے اپنے تعارف میں جس کا ذکر کیا, منظوم ترجموں پہ کام کر رہا ہوں. جو دو نظمیں میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ اسی کتاب میں سے ہے. میری مرحومہ بہن کیونکہ ماہر لسانیات تھیں, لنگوسٹکس کی, اور پھر ہمارے والد کیونکہ فورن سروس میں تھے, انہیں کئی ملکوں میں رہنے کا موقع ملا, تو انہوں نے کئی زبانوں میں شاعری کی ہے. تو یہ ان کی غیر مطبوعہ نظموں کے ترجمے ہیں جو اردو میں نے کیے ہیں, منظوم تراجم ہیں, اور آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ان میں جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ان کی ہیں, اور جو ظاہر خامیاں ہیں وہ میرے ترجمے کی ہیں. تو سب سے پہلی نظم جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, کیونکہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو وطن سے دور ہیں, تو شاید ان کو اس نظم میں کچھ اپنے متعلق چیزیں نظر آئیں. اس نظم کا عنوان ہے بغیر وطن کے لوگوں کی کہانی. بغیر وطن کے لوگوں کی کہانی. جی, بغیر وطن کے لوگوں کی کہانی. نظم دیکھیے کہ میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا کہ تمہارے والد نے کیا سوچا تھا جب انہوں نے سرحد عبور کی. ایک ہاتھ میں تمہیں اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں ان کا اکلوتا بوسیدہ سا سوٹ کیس. میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب تمہارے ہونٹوں پہ موجود نام ایک سچ بتاتا ہے اور تمہارے پاسپورٹ پہ موجود نام دوسرا. تم ہمیشہ اتنے خوش, اتنے پرسکون تھے. تم نے جب بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائے, تمہاری آنکھیں اتنی روشن تھی کہ میں تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں خود کو دیکھ سکتی تھی, لیکن ان میں تمہارے وطن کی شکل مجھے کبھی نظر نہ آئی. اور اس تمام وقت میں دیکھتی رہی اور روتی رہی کہ جب میرے اپنے پہاڑوں کے اوپر سے دوسرے ملکوں کے جہاز گزرے, اور تمہیں بتاتی رہی کہ بغیر وطن کے کوئی خوشی نہیں ہے. ان لوگوں کے بغیر جن کو اپنا کہہ سکیں کوئی خوشی نہیں ہے, اور سب سے پرسکون موت تو اپنے وطن کے پہاڑوں میں مرنا ہے, اور سب سے بدترین موت کسی اور جھنڈے کے نیچے.
क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। मैं तुमसे कहती रही वाह, कि अपने वतन को छोड़ना ऐसा है कि जैसे अपने बाप की 9 दफनशुदा जिस्म को अपनी नंगी उंगलियों से खोद कर बाहर निकालना और उसका गोश्त फरोख्त करना, उसकी हड्डियों को एक थैले में लिए दर बदर फिरना। मैं तुमसे कहती रही कि मेरे वतन में पानी का जायका मुख्तलिफ है, अगरचे वो पानी सिर्फ इस काम के लिए हो कि आप उसमें ट्रंकोलाइजर डालें और उसके बाद उसे पी सकें और फिर कभी ना उठें। क्या बात, मैं तुम्हें अपने वतन की कहानियां सुनाती रही। तुम देख सकते थे मेरे वतन को मेरी खुली आंखों में, मैं ये कैसे भूल गई। मैं इतनी कोताह नजर क्यों थी कि मैंने साहिल पे पड़े मलबे को कभी ना देखा। मैंने ना देखा कि पहाड़ों के दरमियान घाटियां भी हैं, कि मेरे वतन के नीलगू समंदर के रंग बहुत पहले उजड़ चुके हैं। मेरा वतन एक ऐसा वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा है जिसने हमें हड्डियों तक खा लिया है और जो वो निगल नहीं सका उसे थूक कर बाहर फेंक दिया है। क्या बात, क्या बात, क्या बहुत उम्दा, बहुत खूब। और ये कभी नहीं सोचा कि कभी कभार हवा पहाड़ के नीचे उतरती एक ऐसे मिट्टी के तोदे की तरह है जिसके साए में सिर्फ मलबा और सांस की घुटन रह जाती है। क्या बात, सुभान अल्लाह। कंधों पर, तुम्हारे कंधों पर जो बोझ है वो एक ऐसे पहाड़ की तरह है जिसको तुमने अकेले उठाना है, और ये पहाड़ भी तो वतन है जिसको उठाने में कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। क्या बात। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरे वतन में बंदूक साफ करते हुए चल जाने वाली गोलियों से उससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं जितने के जंग के मैदान में। क्या बात, वाह वाह, बहुत क्या बात, क्या बात है, बहुत सुभान अच्छा, अल्लाह, खूबसूरत मंजरकशी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत जी। मेरे वतन की मिट्टी जो उनके सीनों पर फेंकी गई है वो हल्की नहीं है बल्कि मुकद्दर की तरह भारी है। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि यहाँ पर मोहब्बत भी कभी कभार शर्मनाक हो जाती है, खास तौर पे अगर तुम औरत हो और ऊंची आवाज में मोहब्बत करो। क्या बात, वाह, क्या बात है, क्या एहतजाज है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नज़्म है भाई, क्या अच्छी मोहब्बत यहाँ पर गुलिस्तान की कोई शहजादी नहीं है। जब तुम सांस लेती हुई जमीन पर नंगे बदन पड़े आह भरो, तो इस तरह की मोहब्बत मेरे वतन में, जो कि बहुत अजीब और बहुत मुख्तलिफ सी है, वो एक पहाड़ी पर बल खाए हुए ऐसे रास्ते की तरह है जिस पे भेड़ें और जंगली बकरियां तो चलती हैं, इंसान नहीं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कह दें, बहुत मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें अपने वतन के बारे में बताती हूँ। मैं तुम्हें एक अलग ही कहानी सुनाती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे उन्होंने मेरा सर पीछे की जानिब करके मुझे गधे पर बिठाया और फिर मुझे हर गांव में घुमाया कि लोग मुझसे नफरत कर सकें। कैसे जब मैं एक गड्ढे में गई तो किसी ने मेरी मदद ना की और मुझे अपने पाँव को काट कर खुद को बचाना पड़ा। अल्लाह। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरा वतन मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मैं उससे कहीं ज्यादा आवाज में मोहब्बत करती हूँ जिसकी कि वो इजाजत देता है। क्या बात है, मैं उससे अपने दिल के एक मुख्तलिफ हिस्से से मोहब्बत करती हूँ, उस हिस्से से नहीं जिससे तुमसे प्यार किया। मैं उससे कहीं ज्यादा खुलकर मोहब्बत करती हूँ, इतना कि मेरे सर का हिजाब उसकी इजाजत नहीं देता। मैं शहर के खाली चौक में अकेली खड़ी हूँ और खला के पार तुमसे बात कर रही हूँ, और मैं कभी तुम्हें बता नहीं पाई कि मेरे पास तो घर कभी था ही नहीं, और पहाड़ी से गिरती हुई आबशार जो कि गली में बह रही है वो सिर्फ आंसू हैं जो मैंने अपनी सौतेली माँ से बचा के रखे थे, यहाँ तक कि वो बह निकले और पूरी दुनिया बहा कर ले गए। मेरी तरफ देखो,
मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं तुमसे पूछती हूँ कि जब मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ा, बर्फ का मलबूस ओढ़े, और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो तुम मेरे पीछे क्यों ना आए? तुमने आकर मेरा हाथ क्यों ना पकड़ा और मुझे क्यों ना बताया कि कभी कभार वतन के बगैर भी आजादी हो सकती है, कि मुझे तुमसे किसी भी वतन से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए थी, उस वतन से कहीं ज्यादा जिसने मुझे कभी कबूल नहीं किया। उसने सिर्फ मुझे दफन किया, और जब मेरी लाश का वजन बढ़ गया तो मुझे निकाल कर बाहर थूक दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, स्पीचलेस है ये, इस पे तो स्पीचलेस वाकई। इस पे तो कुछ बात और नहीं मैं सकती। एक बात बताऊं कि ये एक खूबी इनकी ये कि ये नज्म जो है ये गालिबन उन्होंने फारसी में होगी, ये सामने रखते हैं और तर्जुमा उसी वक्त करके सुनाते हैं, ये लिखते नहीं है, उसी वक्त तर्जुमा करते हैं। इतनी कुव्वत है इस शायरी में ही, सच्चाई की इतनी बड़ी कुव्वत है कि वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, नहीं कि तर्जुमा करने के लिए। जी जी इरशाद। हाँ, एक छोटी सी नज़म मैं दूसरी पेश करना चाहूंगा आप लोगों की इजाजत से। बिल्कुल इसका उन्वान है इज्तिमाई कब्र। इज्तिमाई कब्र जी है उसके बारे में है जो इज्तिमाई कब्रें वहां दरियाफ्त हुई थी। जी नज़म देखिएगा कि सुना है इस बार इज्तिमाई कब्र में बहुत सी लाशें निकली हैं। सुना है इस बार इज्तिमाई कब्र में बहुत सी लाशें निकली हैं, और फॉरेंसिक्स की लैब के बाहर लंबी कतार थी जिसमें लोगों के चेहरे इस तरह थे कि जैसे छुरी पे रखा हुआ संतरा। वो इस इंतजार में थे कि शायद उनके प्यारों का इस बार कोई पता मिल ही जाए, और एक उम्मीद उनको ये भी थी कि शायद कोई पता ना मिले और वो जिंदा मिल जाएं। मैं भी वहां इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने मुझसे डीएनए के लिए सैंपल मांगा और फिर मुझे बताया कि उन्होंने कुछ हड्डियां ऐसी तलाश की हैं जो अब तक शनाख्त नहीं हो सकती। मैं अपने घर पे हूं भाई, और तुम्हारी तस्वीर के गिर्द लगे मसनूई फूलों पर से गर्द झाड़ रही हूं और अपने आंसुओं से उनको पानी दे रही हूं। वाह 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 वाह, मसनूई फूल। मेडिकल की रिपोर्ट कहती है कि हड्डियों का वो थैला जिसके लिए आज मैंने दस्तखत किए हैं वो तुम हो। मगर ये तो बहुत कम है। मैंने टेक्नीशियन की मदद से उन हड्डियों को मेज पे रखा और इनको एक बार फिर गिना। एक खोपड़ी जिसमें 6 सुराख थे, एक जबड़े की हड्डी, 3 पसलियां, एक रान की हड्डी, कुछ कलाई की हड्डियों के टुकड़े और रीढ़ की हड्डी के कुछ हिस्से। क्या ये मुमकिन है कि मेरा भाई इतना छोटा सा है? मेडिकल की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा ही है। मैंने इन हड्डियों को वापस थैले में डाला और उस मट्टी को दोबारा से अपने हाथों से छुआ, फिर जमीन पर, फिर मेज पर बाकी रह जाने वाली तुम्हारी हड्डियों की गर्द को अपनी सांस से उड़ाया, तुम्हें अपनी पुश्त पे रखा और वापस आ गई। बस के ऊपर मैंने थैला अपने साथ वाली सीट पर रखा और 2 सीटों के टिकट लिए हैं। आज पहली दफा ये मैं हूं जो तुम्हारा किराया दे रही है। आज मैं बड़ी हो गई। आज मैं बड़ी हो गई, इतनी बड़ी कि तुम्हें अपनी पुश्त पर उठा सकती हूँ और तुम्हारी बस का किराया दे सकती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे इतना कम मिला है। मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को उस सोफे के गिर्द खेलता देख रही हूँ जहां पे मैंने तुम्हें रखा है। मैं चाहती हूँ कि उनमें से कोई गलती से इस थैले को खोल ले। मैं चाहती थी कि एक आखिरी बार वो तुम्हें देख लें, लेकिन तुम किसी हड्डी की तरह ही साकित पड़े रहे। उन्होंने बाद में मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि सोफे पे ये आंसुओं के धब्बे कैसे हैं। क्या बात, बिल्कुल स्पीचलेस। एक घंटे से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन हड्डियों को ताबूत की तह में किसी तरह तरतीब दे दूं कि तुम मुकम्मल हो जाओ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। ताबूत के अंदर लगे हुए कील सिर्फ ये राज जानते हैं कि मुझे कितना कम मिला है। बहुत शुक्रिया।
मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर उमैर साहब ने पूरी दुनिया का जो इस वक्त अलमिया है वो बयान कर दिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो उन्होंने अलमिया बयान किया है, जितने मजलूम इस वक्त मौजूद है दुनिया में, चाहे वो दुनिया के किसी खत्ते में भी हों, उनकी तर्जुमानी की है, और एक औरत के होने के नाते जो तर्जुमानी की है वो वाकई स्पीचलेस है। हम सब के पास इनकी इस पर दाद और वाह और तहसीन देने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। साहिब सदर अरशद भी कुछ कहना चाह रही। जी आप कुछ कहना चाह जी साहिब सदर। हाँ, बहुत अच्छी नज़में दोनों और बेपनाह खूबसूरत। बस मैंने कहा ना, वाह की जगह आह निकल रही थी, स्पीचलेस। बहुत खूबसूरत, बहुत जदीदियत है आपकी नज़मों में, बहुत कंटेम्पररी लहजा है, बहुत जबरदस्त। पहली दफा सुनाया ना तो मैं लेकिन जिनका ये कलाम है उनका नाम जरूर बताइए। जी नाम बता दीजिए। हाँ, उनकी बहन जिन्होंने ये सब कुछ लिखा। जी बता दीजिए। ये खातून की शायरी है और ये इतनी ताकतवर शायरी है, बहुत और ये एक जेन्युइन शायरी है जी, और इसने पूरे माहौल को इस वक्त अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और वाकई मैं बताया ना, हर नज़्म ऐसी है कि हम लोग बिल्कुल उसमें कहते हैं ना कि दिल मुट्ठी में ले लेते हैं। नाम बताइए। कुछ देर के लिए आप की समझ में नहीं आता कि आप क्या कहें उसकी तारीफ में, यानी इतना दिल को इतनी पावरफुल है वाकई। इसकी बड़ी कहानी है। मैं इनको एक दफा अलग से लाऊंगी और गुफ्तगू करूंगी, फिर आप सबको बुलाऊंगी। जी अरशद कुछ कह रहे थे आप? अरशद बिल्कुल, मैं तो वाकई ये नज़में तो सामने आनी चाहिए, सामने आ रही है माशाल्लाह, लिख रहे हैं और किताब आएगी। नाम पूछ रही थी शायद, नाम मैंने बताया था जी, मैं नाम पूछना चाह रही थी। कुछ नज़में पढ़ी हैं हमने जो मतलब आमतौर पे इस नौयत है, लेकिन ये बिल्कुल अलग थलग, ये तो एक जहान ही बिल्कुल एक नया जहान खोलती हुई नज़में हैं। इनको लाइए सामने, बेहद ताकतवर नज़में। जी नाम बता रहे थे मैं, सॉरी। जी मैंने नाम बताया था, बख्त ज़हरा नाम है शायरा का। बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। नज़में भी बहुत प्यारी। अरबाब ज़ौक़ में जब तक हम एक नज़्म ना सुने और तर्जुमा साथ साथ चल रहा है, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता है प्रोग्राम। बहरहाल बहुत शुक्रिया।